آج اماں میری شادی کر رہی تھی۔ جو ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ میں یہ سن کر آنسو بہاتے ہوئے سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چینھ نکل گئی۔ میں مریم شاید اس دنیا کی وہ واحد لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں مجھے آئینہ نہیں دیکھنے دیتی تھی۔ مجھ پہ بڑی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اماں نہ کہیں جانے آنے دیتی، نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی۔ اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے شیشہ دیکھ لیا تو اس دن تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کے رکھتی تھی اور پھر میں نے بھی اپنی شدید خواہش کے باوجود کبھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی۔ حالانکہ اماں مجھے کہتی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے، پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں دکھتا، اور کبھی کہتی تھی کہ تم اچھی نہیں دکھتی اس لیے خود کو چھپا کے رکھو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں سوچتی کہ اماں کی کون سی بات پہ یقین کروں۔ اماں نے اس ڈر سے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کر دیکھ نہ لوں، لیکن مجھے اماں کی بات ماننی تھی۔ اس کے سوا میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اس وجہ سے اسکول میں بھی نقاب کر کے جاتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ میں گھر میں بغیر نقاب کے گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے، میں بہت پیاری ہوں۔ لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں سب باتیں بھول گئی تھی۔ لیکن جب میں کھڑکی پہ کھڑی ہوتی تو نیچے سڑک پہ آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کے ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو ان لوگوں کو تو مجھ سے کراہٹ آنی چاہیے تھی۔ کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں مچلتی رہتی اور میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی، وہ بھی مجھے آتے جاتے بہت دیکھتا تھا۔ اس دن گھر میں سبزی ختم ہو گئی تھی، اماں باہر گئی تھی۔ میں نے سبزی والے کی آواز سن کر کھڑکی سے جھانکا۔ یہ وہی سبزی والا خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پوچھا سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا کیا دوں؟ میں نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اماں بھی گھر پر نہیں ہے۔ اس نے کہا جو لینا ہے لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تم سبزی دے دو، کل میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ اس نے خاموشی سے مجھے سبزی پکڑائی، شاپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کے اندر چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں آئی تو انہیں بتایا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر سبزی بنائی ہے، پیسے دے دو، کل اسے دے دوں گی۔ اماں سے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کے اس کی طرف پیسے بڑھائے۔ وہ آیا میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے، پیسے لیے میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اکثر اس سے سبزی لیا کرتی تھی، وہ بھی سبزی کے بہانے میرے ہاتھ کو چھو لیتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں زبردستی پیسے اس کے ریڑھ پر رکھ آتی اور کبھی وہ مجھے مفت میں سبزی پکڑا جاتا۔ پھر ایک دن وہ سبزی دیتے ہوئے ایک ہاتھ بھی پکڑا گیا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ اندر آ کر ہاتھ چھپا کے رکھ دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند سو گئی تب میں نے وہ خط نکال کر پڑھا جس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور مجھ سے خط کا جواب بھی مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھا کے خط کا جواب لکھنا شروع کر دیا اور اس سے کہا کہ میرا نام مریم ہے اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کر میں نے چھپا دیا اور میں بستر پر لیٹ کر پٹھان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے میں نے ہاتھ لے کر دروازے پہ گئی۔ اس نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے ہاتھ اسے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی۔ باورچی خانے میں سبزی رکھی اور چوڑی اٹھا کے سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ اماں تو مجھے بدصورت کہتی ہے تو یہ خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پہ فدا ہو گیا ہے؟ اس کی آنکھیں خراب ہیں کیا؟ اور اسی طرح یہ خط و کتابت کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ میں اس سے خط میں پوچھا کرتی تھی کہ تمہیں میں کیسے پسند آ گئی،
तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वो लिखता, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब तुम खिड़की से झांकते हुए मुझे देखा करती थी। मैं तो इस्माइल की मोहब्बत पाकर मेरा इत्मीनान बहाल होता जा रहा था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत अम्मा के पास बैठी थी और वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। उनकी आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। हाला अम्मा से कह रही थी कि तेरी बेटी जवान हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा है तुमने? मेरी अम्मा आह भर के बोलने लगी, नहीं, और मरियम से कौन शादी करेगा? भला अच्छी ठीक ठाक तो दिखती है मरियम, मिल जाएगा रिश्ता, हाला ने कहा। और ये बातें सुनते हुए चाय को उबलता हुआ देखकर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब अम्मा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए आंसू पोंछने लगी और चाय में निकाल के हाला को दे आई। कभी कभी अम्मा की बातें मेरे दिल चीर देती थी। मैं सारी रात अपने दुख पे रोती रहती थी। सुबह उठकर काम करते हुए सब्जी फरोश की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। झाड़ू लगाते हुए रुक गई और फिर से अपना काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि इस्माइल के सामने जाऊं। 2 दिन मैं नहीं गई। तीसरे दिन वो देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाज़ें लगाता रहा। अम्मा भी घर पर नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा सब्जी नहीं चाहिए, तो वो पास आया और शिकवा किया कि मैं क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने उसे कहा कि कोई फ़ायदा नहीं, अम्मा हमारी शादी कभी नहीं होने देगी, तुम मुझे भूल जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े तो वो नाराज़ होकर कहने लगा कि शादी तो मैं तुम ही से करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ मलंग बाबा को आता देखकर मैं अंदर चली आई। अगले दिन मैं आटा गूंद रही थी कि इस्माइल ने आवाज़ लगाई। मैंने झट से हाथ धो के दुपट्टे से पोंछे, दरवाज़ा खोला। उसने सब्जी के साथ मुझे हाथ पकड़ाया और गली में मुड़ गया। सारे काम काज निपटा के मैं अम्मा के सोने का इंतज़ार करने लगी। जब वो सो गई तब मैंने वो हाथ निकाला और खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें इस्माइल ने लिखा था कि अम्मा से बात करो, अगर वो मानती है तो ठीक, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा। बात का जवाब ज़रूर देना, फ़कत तुम्हारा इस्माइल। मैं जवाब लिखने लगी कि इस्माइल अम्मा से बात करना फजूल है, वो मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा है भाग के शादी करना ही वाहिद रास्ता है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हाथ लिख के मैंने छुपा कर रख दिया। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई मैं दौड़ी हुई दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोल के उसे हाथ पकड़ाकर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। और कुछ दिन यूं ही हत्तो किताबत चलती रही और दोनों के मुतफिक राय से घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस मौके का इंतजार था। उस रात मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब बस अम्मा के सोते ही यहाँ से निकल जाना था। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में चली गई है तो मैं आस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकालकर ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग निकाला। बैग उठा के कंधे पर डालकर दबे पांव बाहर निकली। बाहर निकलकर चप्पल पहनी और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात ताला लगा कर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज़ के छत पर पहुंची। नीचे देखा तो इस्माइल खड़ा था। छत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था। मैं आसानी से छलांग मारकर कूद गई। मुझे इस्माइल ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त न जाने कहां से वो मलंग आ गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही मलंग था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था और हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता था। मुझे पीछे खींचकर बोला, कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत रौंदने चली गई थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस मलंग ने एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का गिरेबान और उस पर थप्पड़ों की बौछार करते हुए उसे धक्का दिया और बोला, शक्ल गुम करो अपनी, आइंदा यहाँ दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही इस्माइल वहाँ से भाग गया। मैं रो रो कर उसे पुकारती रह गई। अब मलंग मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने बुखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मुझे उस मलंग के साथ वहाँ देखकर चिल्लाने लगी कि ये सब क्या है। मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता हुआ अंदर लाकर धक्का देकर बोला, ये तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर सब्जी वाले के साथ भाग रही थी, संभालो इसे। मैं खामोशी से वहाँ बैठी थी। अम्मा कह रही थी, कौन ब्याहेगा तुझे? तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? अम्मा मुझे मारते हुए ये बोली। ये सुनकर वो मलंग जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़ा और मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? अम्मा ये सुनकर बोली, तू करेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। वो कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अम्मा बोली,
ठीक है तो फिर इस जुम्मे को मैं आऊँगा और इसे निकाह करके यहाँ से ले जाऊँगा। वो चला गया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, अम्मा के पैर पकड़े कि मेरी शादी इस मलंग से ना करो, मगर वो नहीं मानी और बोली कौन सा वो मलंग तुझसे शादी करेगा, ऐसे ही एक बात करके गया था, तुम देखना वो नहीं आएगा। उस दिन जुम्मा था। मैं परेशान थी कि कहीं सचमुच वो मलंग ना आ जाए। मुझसे शादी करने का काफ़ी वक्त गुजर गया। वो ना आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। इस्माइल ने तो पलट कर मेरी खबर तक न ली। उसके झूठे मोहब्बत के दावों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी। अचानक दरवाज़ा खड़का। मैं चौंक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो एक खुश शक्ल नौजवान वहाँ खड़ा था। उसके साथ 2 गवाह और काजी भी थे। अम्मा से कहने लगा, मैं वही मलंग हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अम्मा खुश होकर उसको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही बेढंगा मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया था और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा बरखुदार शोहर कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं वहाँ से फौरन पीछे हटी। मुझ पे लर्ज़ तारी हो गया। अम्मा तो सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी हैबतनाक जानवर जैसी थी। मेरा शोहर मुझे चुप करवा रहा था और बोला, जो तुम देख रही हो वो हकीकत के बरअक्स है। जो कैफियत तुम पर गुजर रही है मैं उस कैफियत से गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, वो कैसे? वो बोला, इसका जवाब तुम्हारी अम्मा के पास है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वो मुझे उसी वक्त वापस अम्मा के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है। आज तुम राज से पर्दा उठा ही दो, अपनी बेटी को सब बता दो। अम्मा रोने लगी और कहा कि वो माजी में जादू टूना करती थी। एक दिन उसका असर उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक औरत पर गलत अमल करके उसे मार डाला। वो हामला थी लेकिन उसका बच्चा बच गया। वो खुद मर गई, उसकी सजा मुझे मिली है। वो शर्मिंदा होकर बता रही थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरा शोहर बोला, जानती हो वो औरत कौन थी? वो मेरी माँ थी जिसको तुमने मार डाला था। वो कहता रहा कि इस अमल से मेरी माँ तो मुझे जहन्नम देकर मर गई, मगर मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसे दिखती थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम सिर्फ अपनी अम्मा को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं। जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता था। सबको ही मुझे देखकर कराहट आती थी। लोग गिन खाते थे मुझसे। मैं थोड़ा बड़ा होकर किसी दरसगाह में पनाह लेकर बैठ गया और वहाँ दरसगाह के कामकाज करने लगा। वहाँ एक बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे। वो मुझे बहुत शफकत से पेश आते थे और रोज़ मुझ पर दम दरूद करते और दम किया हुआ पानी मुझे पिलाते और मुझे कई वजीफ़े बताए कि बेटा तुम ये वजीफ़े दिन रात पढ़ते रहो। तुम पर किसी औरत ने गलत अमल किया है जिससे तुम्हें भी नुकसान हुआ है और उसकी बेटी को भी। तुम ये वजीफ़े पढ़ोगे तो उनकी बरकत से इस शैतानी अमल का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं दिन रात वो वजीफ़े दिल लगा कर पढ़ने लगा। रोज़ बुजुर्ग का दम किया हुआ पानी पीता, हर वक्त अल्लाह को याद करता रहता। और एक दिन मेरे रब ने मेरी सुन ली और उस अमल का असर मुझसे ख़त्म हो गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछता, मैं कैसा दिखता हूँ? वो कहते, तुम बहुत खूबसूरत नौजवान हो। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करता कम था। फिर एक दिन मैं अपने मोहल्ले अपने घर वापस आ गया और सबको वाक़या सुनाया तो लोगों ने बताया कि फ़लाँ औरत ये अमल किया करती थी, अब उसने वो काम छोड़ दिया है। और जब मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा तुमसे पूछने के लिए कि तुम ऐसा क्यों किया करती थी, लेकिन वहाँ देखा कि तुम्हारी बेटी रोज़ सब्जी वाले से बातें किया करती थी और हाथ लेती और हाथ देती है और ये लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे ये सब गवारा ना हुआ कि अपने होते हुए ये सब होने दूं, इसलिए इस रात मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा देता रहा। उसको भागने से रोका। उसने सारा किस्सा सुनाया तो मेरी अम्मा उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगी। वो बोला, मेरी शक्ल ठीक हो गई है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को सब बताओ। मैं ये सब सुनकर इतना बोली, अम्मा तुम ठीक कहती थी कि मेरी शक्ल वाकई बहुत बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी। अम्मा रोते हुए बोली, नहीं मरियम। मेरा शोहर अकबर कहने लगा, तुम सबको खूबसूरत दिखाई देती हो, सिर्फ तुमको और तुम्हारी अम्मा को भयानक जानवर जैसी लगती है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें दरसगाह लेकर जाऊंगा, वहाँ से तुम ठीक हो जाओगी। आज 40वां दिन था। मुझे दरसगाह पर बुजुर्ग का दिया हुआ पानी पीते हुए और दम दरूद करवाते हुए मैंने हर वजीफ़ा पढ़ा, बहुत इबादत की, रो रो कर दुआएं मांगी थी। वजीफ़ा पूरा हुआ। बुजुर्ग ने बताया
کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر منہ دھو کر باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا، یہ پیاری سی لڑکی اور کوئی نہیں، میں ہوں، مریم۔